स्वामी जी बात करने जाते हो, मैं कहा मैं किसी स्वामी जी को नहीं जानता, मैं नास्तिक बंदा, मुझे कोई स्वामी जी से बात नहीं करनी है। अब जो भी स्वामी जी से थे तो मना कर दिया उसको, बोला नहीं, बोल दिया बहुत इंसिस्ट कर रहे, मैं कहा उनको कुछ भी बोल दो, उन्होंने मना किया, बोल दो तुम्हारा तो कवर्ड है, इससे उन्होंने एक बार तो बोल चुकी है भी आई एम सिटिंग, या तो बोलते ना भी बाहर गए हैं कुछ है वो अलग है। तो फिर दोबारा अब स्वामी जी को बात तो करनी है, वो तो डेस्परेट हैं, जो भी स्वामी जी थे, इतने इंडिया में इतने स्वामी जी हैं, तो पैसे ऐसे पैसे की गड्डियां, और उसके ऊपर एक विजिटिंग कार्ड है, जैसे विजिटिंग कार्ड पड़ा हो। अब वैसे तो पता नहीं चलता किसका है, लेकिन वो और वो उसकी स्टोरी बाद में ये पता चली, जब वो पैसा देने आया था तो मंत्री जी घर पे नहीं थे, तो उसने सोचा मैं ऊपर ये स्लिप रख देता हूँ, और वो जिसको पकड़ाया उनके पीए को, उसने वो स्लिप खोल के स्लिप ऊपर रख दी, और वो ऐसे ऐसे ही वहां पड़ा रहा। उसने आते ही एंटर करते, यस संधू, विच बैच ऑफ आईपीएस यू आर। इसका मतलब बैच इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैं उसको बोला, उसका बैच भी बता दिया। आई सेड सर, how does it make any difference whether I am 63 बैच और 83 बैच? उसका बैच भी बता दिया, अपना भी बता दिया। Does it make any difference? I am SP CBI. I have called you here as a suspect in this case. Criminals are greedy, desperate and stupid. वो ग्रीडी होते हैं तो और करते हैं, they want to get more money. Desperate होते हैं भी बहुत क्विकली कर लो जो भी करना, पैसा इकट्ठा करना क्विकली करो, एकदम से इधर से उधर से सब, और उसी चक्कर में वो एरोगेंस आ जाती है। तब नहीं पकड़े गए थे, अब नहीं पकड़े जाएंगे, एंड देन दे डू समथिंग स्टूपिड, वहीं पे वो पकड़े जाते हैं। सर सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? Actually, originally I am from a small village in Amritsar district. It used to be a nondescript village, like you can't see it on the map because one only has to be there. Its name is Fatehpur, and it is about 6-7 kilometers from Amritsar city. So I am born and brought up there only. My father, grandfather, they all lived there only in that place. ग्रेट सर। एंड सर जो ये आपकी जर्नी रही है एक आईएफएस तक की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरफ, तो सर ये स्टूडेंट टाइम से ये आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एक पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है या आईएफएस की तरफ जाना है? ये एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ से तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई कम फ्रॉम ए फैमिली which gave me full support, but there was no one educated above matric. Okay. So nobody advised me to do, what not to do. So when I started going to the school, this became like you call it habit or obsession to be first in the class without any particular aim. Just have to be first in the class. So started, so in class 8, then somebody said, oh, you are topper in school, you should take science. So I joined science. That time family said, wanted me to become a doctor. So I said, okay, we'll try. Somehow it did not work. So did my BSc in medical, then MSc in medical, MSc zoology. Till then had no idea what to do in life. Okay. So after MSc, I just joined in PhD. No aim. Just like I will do PhD and become maybe professor. Then suddenly it came to my mind I should become a professor. I really loved speaking, talking, and during seminars. So when I was about to finish PhD, somebody said, oh, there is a advertisement in the newspaper about UPSC. I said, what is UPSC? So I looked at the full form of UPSC, Union Public Service Commission. Indian Forest Service advertisement was there. So filled the form. I thought, okay, at least we'll see what it happens. I appeared, I got selected. So first attempt? That's it, first attempt. And there was no any specific preparation, just like the subject. So I got selected, got good position. So that's how I joined IFS.
That's I great. did my training there for 2 years. Got my posting in Andaman. Did my posting also for 3 months there. So that's all for my Indian Forest Service. I loved that time, but then somehow destiny had something else in store. एंड दैट्स अ ग्रेट सर कि एकदम से हमें पता चला, हाँ। बट अगर हमें करना है तो आप जैसे बता रहे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, मतलब उस चीज में कितना फोकस, कितना डिवोशन होगा आपको, आप में ये डेफिनेटली अपकमिंग जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि आप भले ही कितने लेट भी शुरुआत करो, बट अगर आप फोकस्ड हो, बट अगर आप मोटिवेटेड हो, तो डेफिनेटली आप एक अटेम्प्ट भी बहुत है। हाँ, डेफिनेटली मैं एक ही अटेम्प्ट में आईएफएस किया है और एक ही अटेम्प्ट में उसके बाद आईपीएस। तो सर ये आईपीएस की जर्नी कैसे रही आपकी, मतलब आईएफएस से फिर आईपीएस की तरफ? जब मैं, वो बड़ा मजेदार किस्सा है, जब मैं आईएफएस में सिलेक्ट हुआ तो न्यूज़पेपर्स में रिजल्ट आते थे उस टाइम ना, तो उस टाइम था भी रिजल्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, तो सम पीपल वेंट टू माय फादर एंड दे सेड, "Oh, your son is selected in this service." So he said, "What is that?" Because he didn't know. Nobody knew, because just fun sake I applied. Never thought I will get selected. Written interview. So, and when he came to know, I explained to him. He asked me, "What will you do as IFS?" I'm not trying to say that IFS is any way less important. बहुत important service है, forest service भी. But when I explained to him what forest service will be, I will be divisional forest officer, then this, that. So he said, "Oh, Janglat, that is, oh, Janglat." So you will be like Janglat officer. Since we are Punjabi, so he said, "Maja taunda agar SSP lagda kete." SSP is Senior Superintendent of Police. In Punjab, they only know either SHO, that is the officer in charge of police station, or SSP. Senior Superintendent of Police. He said, "Maja taunda agar SSP lagda." वो किमें लगते हैं, like how you get selected for SSP. I said, no, it's not like any course or something. You have to appear in the exam in UPSC. There are civil services which have IAS, Foreign Service, Police Service, Customs, Revenue, so many others. So he said, okay, then I came. When the advertisement came, I filled in. And I filled my choice as IPS. Okay. And after IPS, I drew a line. There are 26 services. I drew a line, other services not required. Okay. It was not arrogance. It was just I was not interested. So, and thankfully, maybe God was great, if you believe in God. And I got through. And I got IPS. That's literally great, sir. And वो भी सर एक अटेम्प्ट में निकाल लिया? हाँ, एक ही attempt. Only one. I did not, like many people, first attempt they get IPS or revenue service or something. Then they try again to get into IAS. But I did not try any second attempt. Only one attempt, and that I wanted IPS. I got IPS. I was very happy with IPS. Was super excited, and then the rest of the journey starts there. बट सर ये जो फिक्स माइंडसेट जो है आपका, इसके लिए एक मोटिवेशन क्या है सर आपके साथ कि नहीं मुझे ये चाहिए तो मैं यही भरूंगा और यही मुझे मिलना भी, इसके लिए मोटिवेशन, और सर आप कैसी प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पे? Maybe I was a bit lucky also, but you have to do systematically things. Hard work has no substitute. So if you are taking something, I strongly believe, in fact I have written in one of my profiles that no job is good or bad. Any job you do it to the best of your ability. So if I am appearing in exam, I want to do the best. And for preparation, maybe I did not put in that many hours as some others had to put it. So, but systematically, okay, this is the one, you have the point wise. Of course, if I advise some student how to appear in that, I will give them how to get more marks. Our system, unfortunately or fortunately, is based on how many marks you get. Maybe I perfected that art of getting marks. So any question comes, okay, this question, how I can get
better marks. I did no training. This is another example. I have seen very, very few people, not that I'm bragging, boasting or something. All those people whom I met in the academy after going there, they all had training in some training institutions. This SN Rao, this one, this, so many training institutions where they specially train. Like nowadays people train for competing in IIT. When I first day reached there, to join my batchmates in IPS. So almost everyone knows each other. Oh, we were together in that study center. And I did no training for written exam, no training whatsoever for interview. No mock interview even once. Like, but I'm not saying that is good thing. People do so much practice. They do mock interviews, they sit in front of somebody, you ask them imaginary questions, how to respond, where the modulation should be coming from a village. I thought, let me go as raw and rustic as I am. That was my theory. If I am sitting in the interview panel, if in any case, if by any chance I sit there, I will immediately find out who has got training, whose responses are tutored. I will go for somebody who is giving honest and rustic, absolutely as if it is coming, untrained, so that that person then later on can be trained as you need. That's my theory. I'm not saying everybody has to agree with me, but I got into. But sir, literally, it's great and it's literally ऐसा लग रहा है कि ये God gifted है सर, कि आप जैसा सोच रहे हो, जैसी मेहनत कर रहे हो, सभी एक स्पेसिफिक सिस्टमैटिक पैटर्न वाइज जा रही है. ग्रेट सर. सर तो आपने आईएफएस की सर्विस ज्वाइन की थी या नहीं की थी? आई मीन कितना टाइम की थी? नो, आईएफएस में ट्रेनिंग पूरा किया. 2 साल का ट्रेनिंग होता है. 2 साल के बाद वो 3 महीने का फाउंडेशनल कोर्स मसूरी में, जिसमें बाकी सारी सर्विसेज वाले भी आते हैं. तो उसके बाद जब मेरी आईपीएस में सिलेक्शन होगी तो मैं सोचा भी अब वही सेम मसूरी में सेम कोर्स 3 महीने दोबारा करने से अच्छा है वही 3 महीने मैं अंडमान चला गया. मेरी पोस्टिंग हुई थी अंडमान. तो वो 3 महीने फॉरेस्ट में जितना मैक्सिमम काम कर सकता था, आई डिड इट. ये सोच के भी, सो दैट पीपल रिमेम्बर भी कोई था यहाँ 3 महीने था. मे बी आई वांटेड माय नेम सो दैट पीपल से भी यहाँ 3 महीने रहा था, 3 महीने में उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने ट्री लगवा दिए. और वही चीज जो है फॉरेस्ट ने मुझे नहीं छोड़ा. बाद में पुलिस में भी जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है उस जगह पे प्लांटेशंस हुई है साइमल्टेनियसली. एक जगह उखरूल जो उस टाइम का सबसे ज्यादा सेंसिटिव, हर रोज एम्बुश होते थे, वहां पे भी पूरे मेरी 3 साल की टर्म में ऑलमोस्ट लाइक 60-70,000 ट्रीज प्लांट करवा दिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एज ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स. तो वो फॉरेस्ट इवन पुलिस न्यूज में आया था वो दैट हाउ द एसपी हैज पुट द पुलिस एंड यूज्ड ऑल दोस यूथ, सबको जो वो है ना, हु वर रेडी मटेरियल टू जॉइन द इंसर्जेंट्स, उनको काम पे लगा दिया. गाड़ी पुलिस का, डीजल पुलिस का, गाड़ी में बैठो, सीडलिंग्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, और पूरा रोड साइड में प्लांटेशन का. तो फॉरेस्ट ने मुझे अभी भी नहीं छोड़ा. अभी मैं आफ्टर रिटायरमेंट घर में भी कोई ना कोई प्लांटेशन, ट्री, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. वेजिटेबल, फ्रूट ट्रीज बहुत लगा दिए हर जगह. That's literally great sir. And so ये आईपीएस के सर्विस में आप कितना टाइम रहे और कुछ वहाँ के एक्सपीरियंस है? आईपीएस में 83 में ज्वाइन किया, वहां से लेकर आज तक वही हूँ. वो बोलते हैं ना, वन से पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन. पुलिस से रिटायरमेंट तो होगी, लेकिन अभी भी आई एम स्टिल वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट वही. लेकिन अगर आईपीएस की सर्विस स्पेसिफिकली देखेंगे तो यहाँ पे जब मेरा एंड में यूएन में मैं गया अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद, तो तब तक ऑलमोस्ट 2002 तक तो आईपीएस की सर्विस रही, 83 से 2002. एंड सर उस टाइम जो आपका टाइम था आईपीएस के टाइम पे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपकी पोस्टिंग कौन से एरिया में थी सर? मेरी मणिपुर में रहा हूं मैं. अभी तो मणिपुर बर्निंग है, कोई बात भी नहीं करता मणिपुर की. लेकिन उस टाइम में मणिपुर में मैं तकरीबन 9 साल रहा हूँ. आई गेव द यूथ माय यूथ देयर एज ए यंग
ऑफिसर, फर्स्ट पोस्टिंग देयर, और जिस जगह कोई नहीं गया वहाँ भी गया। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग हुई, और दोनों में एक भी ऐसा विलेज नहीं है विच ड्यूरिंग माई 3 ईयर टर्म आई डिड नॉट विजिट। और कुछ ऐसे विलेज हैं, विलेजर्स वर टेलिंग मी दैट बिफोर मी नो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैड एवर कम टू देयर विलेज in their entire lives. There are many. Someday maybe people tell me to write a book. I don't have yet time, but maybe someday we'll write those details. That's literally great, sir. And sir, कोई ऐसे केस या ऑपरेशन जो आपको याद आ रहा है म्यांमार के टाइम पे, या सॉरी मणिपुर इसको ठीक है। एंड सर, आपको कोई केस याद आ रहा है मणिपुर के टाइम का, या ऑपरेशन कुछ याद आ रहा है? बहुत है, बहुत। वो तो मतलब कम से कम ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वाज एक्शन, यू नो। वो था जब इट वाज हाईली इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड। तो पहले मेरी तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पोस्टिंग हुई। इवन पोस्टिंग होने से भी पहले वो जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आईपीएस से, पुलिस एकेडमी से, हैदराबाद से स्टेट में जाते हैं तो पहले 3 महीने ट्रेनिंग होती है, वहां से दोबारा ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली अटैच करते हैं। एक स्टेज पे आपको पुलिस के वो कांस्टेबल का काम करना है 1-2 दिन, फिर हेड कांस्टेबल का, फिर इंस्पेक्टर का। तो उस टाइम भी 2-3 केस हुए जब मैं वो उस फेज में था, इंस्पेक्टर का एक्टिंग 1 महीने के लिए कर रहा था। तो उस टाइम एक केस आया था, यहाँ एक 80 साल के बुड्ढे ने अपनी 20 साल की डॉटर इन लॉ का रेप कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट केस इन उस टाइम में, क्योंकि रेप इज अनहर्ड ऑफ इन दोज एरियाज। ऐसा वो केस वही स्टिक करता है, ऑफ कोर्स वही सक्सेसफुली डिड। तो फिर मेरी अभी उसी ट्रेनिंग फेज में एक अंडरकवर ऑपरेशन में गया मैं, ड्रग ऑपरेशन में, ट्रेनिंग के टाइम में, कि एक नेबरिंग कंट्री में। एक रात के लिए गया था मैं अपनी वाइफ को बोल के, 5 बजे शाम को मैं निकला हूँ घर से पार्टी के साथ, और उस बोल के गया घर पे भी कल सुबह आ जाऊंगा। कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, ऑफ कोर्स वेपन एंड अदर थिंग पीपल थे। और मैं 9 दिन के बाद वापस आया घर, उन्हीं कपड़ों में, सेम, क्योंकि दूसरे जगह एक नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर में जाके 8वें और 9वें दिन के बीच में 7 स्मगलर ड्रग्स के साथ पकड़ के बॉर्डर क्रॉस करा के इधर लेके आके अरेस्ट किए। ये मेरा प्रॉपर पोस्टिंग से भी पहले था, ट्रेनिंग फेज में। तो ये केस वहां अभी भी कई बार जब मिलते हैं, जिन लोगों को पता है वो अभी भी डिस्कस करते हैं एज ए प्रोबेशनल, नॉट इवन एज ए रेगुलर पोस्टिंग। ये था 1986 फरवरी, और जिस दिन मैं वापस आया वो मुझे याद है, क्योंकि दैट वाज उन दिनों में जो लोग बिलीव करते हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन में 14 फरवरी को वापस आया। फिर मेरी पोस्टिंग हुई एज सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो वो फर्स्ट पोस्टिंग से 1 हफ्ता पहले का ये ऑपरेशन है। उसके बाद सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर तमिंगलोंग काफी हुए, बहुत, वहाँ इतने सो मैनी किलिंग्स, एम्बुश, हर जगह पहुंचना, बट जो केस स्टिक करता। उसके बाद एक यहाँ वो ट्रेजरी थी, अपने बॉर्डर रोड्स वालों का पैसा लूटा था कुछ लोगों ने, दैट केस आई सॉल्व। पैसा भी रिकवर किया, लोग भी पकड़े, वो सारे जो थे वो एक्चुअली इंसर्जेंट्स नहीं थे, लोकल गुंडाज थे, पोजिंग एज इंसर्जेंट्स। तो वो भी केस सॉल्व किया। आई कैंप्ड देयर फॉरेस्ट में जब तक पकड़े नहीं गए। वो केस बहुत सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गिव मी कमेंडेशन लेटर, क्योंकि कैश तो आईपीएस ऑफिसर्स को देते नहीं है ना, फिर उसके लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए। मिला मुझे बाद में किसी और केस में, कैश भी मिला, लेकिन इस केस में कमेंडेशन सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का, होम डिपार्टमेंट का भी पड़ा होगा कहीं घर में। एक वो केस है। फिर उसके बाद उसी में एक सीआरपीएफ की कॉन्वॉय का एम्बुश हुआ था, उसमें तकरीबन 22 सीआरपीएफ पीपल वर killed, vehicles were burnt, treasury money was looted. So then I was taken there to take over that. So some people even lost their mental balance seeing those bodies there, including one colleague. So I did those ones.
Many cases. In fact, if I talk of even Tamenglong in Manipur cases, there will be too many. So that was another case where we definitely did what maximum was possible. Then came to Imphal as a commanding officer of a counterinsurgency operations battalion. Mhm. So did many operations during that time. Rescued some people. And the most notable was the rescue of one executive engineer and his driver, because they were kidnapped by one insurgent group right on the border with Myanmar. So the chief minister and DGP called me at night around 10. They say, you have free hand, plan whatever you have to do, Mhm. but get these people. Even if you have to negotiate, do it. You don't have to ask. Then some of those details I cannot discuss, sensitive, how I went about. Okay. But next day, Mhm. by the next evening, came back with those two people in my vehicle, and the army platoon was proceeding to that side. On the way, we stopped each other. I asked them, where are you going? They said, oh, we are going to do operation to rescue those. I said, they are sitting in my vehicle. So you can as well turn back, or if you want those who other, you can go and clear the area and chase. So that was, for that also I got commendation from government. Mhm. Not even one bullet fired. You know, you have to be sometimes lucky in those operations. Mhm. Nobody killed. Of course, in another operation we lost some other, but that operation Mhm. where we had expected, and that was very interesting actually. When we went the whole night, it's a very comical feeling actually when you go. We are going with like 20 vehicles, all heavily armed, and we are going through those thick forest areas. And there was one guide sitting. I won't be able to tell who was that guide, from where he was. He was from, of course, from their ranks, but was sitting in my vehicle, so that he tells where it is. You have to take calculated risk. He could lead me into some trap, or he could be helpful. You have to make that judgment. I made that judgment. Mhm. And when we reached at one spot, those people must have seen we are coming, so many vehicles at night, the headlights and all. We stopped the vehicles there because he said they have to be somewhere in this area. So we started in extended line searches. Mhm. I won't say which part, but it was in Manipur, somewhere in the bordering with Myanmar. So when we started proceeding slowly, and there was one person tied to the tree, and since his hands were tied, he could not raise his hands like this. You know, his hands are tied, and he is shouting very heavy, this sad voice. Kap Ganu means don't fire. That is in local language. Kap Ganu, and that was the same person to whom we had gone to rescue. Okay. So he was tied on that tree. We opened his ropes and all, and then started. Where is the second one who was with? He said, oh, he is tied on some other tree nearby. So then with the lights we searched, and those insurgents, they had meanwhile, they saw a vehicle, so they ran away. Mhm. So then I asked that officer, why they tied you rather than killing? He said, no, they wanted to negotiate for money. Mhm. So they were talking to each other that tie these two people. If the forces after searching go back, Mhm. we will come back and get them. Till then, rather than having with us and covering, it's better tie them to the trees. So we opened both of them, put them in my vehicle. I said they will sit with me while going back. We started our backward journey 3 hours. By that time, SP of the neighboring district came, then this army convoy. So I told them, okay, you do follow-up operation. This man, you chase those people who have run away. But this man, my responsibility was to get these two persons rescued. And they will sit in my vehicle till I take them all the way up to the chief minister's house. That here are the two people. So obviously that also I got appreciation for that. Without a bullet being fired, Mhm. not even in the air. We might have fired had he not shouted, don't shoot, Kap Ganu in the local language they said. Don't. So that is also very interesting. Mhm.
And then there were many ambushes which happened, armies ambush, Gurkha rifles, Assam rifles, where I went as a follow-up to rescue them and conduct follow-up operations. Quite a lot of them, but I think this one I will, unless you have any specific, will leave. Because there are far too many to discuss. बट सर इसमें कोई एक ऐसा ऑपरेशन जो बहुत क्रिटिकल हो, Yes. बहुत ऐसा एक ऑपरेशन आईपीएस के, जब आप आईपीएस के प्रोफेशन में थे या जब आईपीएस थे, एक कोई ऐसा केस जो बहुत क्रिटिकल है जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ होता है ना कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो चोर है या जो भी थीव्स है या जो भी मैं अगर बोल सकता हूँ ऐसा कि क्या होता है, गुंडा कोई भी है, वो एक तो एक सुराग छोड़ जाता है। बट एज अ आईपीएस ऑफिसर, जैसे आपके पास पूरी टीम है, बट हो सकता है कोई एक ऐसा केस हो जिसमें जो अपराधी है उसने कोई क्लू ही ना छोड़े, तो ऐसा कोई केस और ऐसा कोई क्रिटिकल केस? You know, Abhishek, वो criminals they think they are very smart, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी गलती मोस्टली कर देते हैं। तो मेरी उसमें एक काफी मैं कोट करता हूँ कई बार अपने प्रेजेंटेशंस में, क्रिमिनल्स आर ग्रीडी, डेस्परेट एंड स्टूपिड। वो ग्रीडी होते हैं तो और करते हैं, दे वांट टू गेट मोर मनी। डेस्परेट होते हैं कि बहुत क्विकली कर लो जो भी करना, पैसा इकट्ठा करना क्विकली करो, एकदम से इधर से उधर से सब, और उसी चक्कर में वो एरोगेंस आ जाती है। तब नहीं पकड़े गए थे, अब नहीं पकड़े जाएंगे, एंड देन दे डू समथिंग स्टूपिड, वहीं पे वो पकड़े जाते हैं। एटलीस्ट जितने भी केसेस हैं, बट स्टिल सम केसेस डू रिमेन अनसॉल्व्ड। लेकिन यहाँ तक मुझे याद है, आई वॉन्ट से केसेस वर अनसॉल्व, केसेस वर सॉल्व, लेकिन वो ट्रायल में अगर छूट गए लोग फॉर वेरियस रीजंस, जज की अपनी मर्जी है और वो जज के हिसाब से एविडेंस जो है वो डिफेंस का और उसका दोनों में नहीं थे। कई बार एविडेंस हम लोगों को लगता भी बहुत है, लेकिन कोर्ट को लगता बहुत नहीं है, लेकिन मोस्टली केस पता चल जाता है। कोई एब्सोल्युटली अनसॉल्व्ड, आई डोंट थिंक कोई ऐसा केस होगा। वो होता क्या, कई बार एक्यूज पकड़ा नहीं जाता, यू हैव इंडिकेशन, जैसे वो कई केस हम लोग की बाद में इंटरनेशनली किए हैं। वी नो who was the accused, but those accused are never arrested. Okay, yeah, I got it. You know, we like police has solved. It's not my case. Like take for example Dawood Ibrahim, Bombay police, CBI, they solved the case. They knew who were the people involved. Dawood Ibrahim, Tiger Memon, this Memon, all they knew. लेकिन वो नहीं पकड़े गए, निकल गए, तो कभी तो पकड़े जाएंगे। तो मतलब होता है कभी, जब कई बार टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, भी इतने टाइम में करना है। बट मोस्ट इवन सी टेक फॉर एग्जांपल, मेरा केस नहीं है, वो पुराना, बहुत पुराना मर्डर केस जो हुआ था, वो पंजाब चीफ मिनिस्टर का, प्रताप सिंह कह रहा हूँ, काफी साल पहले, हम लोग बचपन में से सुनते थे। कई साल निकल गए, केस सॉल्व नहीं हुआ, तो वन ऑफ एक एक्यूज्ड ऐसा था, उसके अपने ही वो सर पे चढ़ के उसको वो दारू पी के वहां पे दारू पी के ठेके के पे बोल रहा, हमने मारा था उसको, हमने मारा था। नोबडी बिलीव जिनको बोल रहा था, लेकिन एक को लगा भी नो हार्म इन चेकिंग इट आउट, उसने जाके पुलिस को बता दिया और रेस्ट इज हिस्ट्री, केस सॉल्व हो गया। उसके बाद पकड़ा गया, हो गया, उसके बाद जो बाकी थे उसके साथ वो भी पकड़े गए। तो वो कई बार क्रिमिनल्स को भी वो ऐसे भी होता है, उनकी अपनी गिल्ट फीलिंग्स हो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट छोड़ देते हैं उसी स्टुपिडिटी में, फिर स्टुपिडिटी होगी। लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जो बहुत बड़ा हो, इम्पोर्टेंट केस हो और ना सॉल्व हुआ हो, वो इमीडिएटली तो दिमाग में नहीं आ रहा, हमें सोचना पड़ेगा। तो ये फिर ग्रेटनेस है आईपीएस या जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमने बनाया, जो स्टैब्लिश किया, ये उसका फ्रूटफुल रिजल्ट है कि हम कोई भी ऐसा क्रिटिकल और जो टाइम पे हमें सॉल्व करना है उसे हम डेफिनेटली सॉल्व करके ही मानते हैं। दैट्स लिटरली अ ग्रेट सर। एंड सर, ये जो आपकी आईपीएस से फिर जो सीबीआई की तरफ जर्नी रही, ये कैसे सर? ये भी बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट मैं मणिपुर में था तो काफी साल हो गए, सब डिफिकल्ट जगह पोस्टिंग कर ली, ऑलमोस्ट 9 साल होने वाले थे।
तो सीबीआई से हर साल हर स्टेट को रिक्वेस्ट आती है अब ऑफिसर्स को नॉमिनेट करने के लिए डेपुटेशन पे या अप्लाई करने के लिए, लेकिन सीबीआई बड़ी सिलेक्टिव है, चूजी है। ऑफिसर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनको चाहिए वेरिफिकेशन में क्लीन इमेज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वो अपने हिसाब से अपनी वेरिफिकेशन कराते। तो मैं मणिपुर में था, तो उस टाइम मैसेज आया, तो जो मणिपुर का डीजी थे मिस्टर ए.वी. लिडल, एक्सीलेंट ऑफिसर, so he called me, he said you are my best officer, लेकिन you should not have all your career in Manipur, तो ऊपर देखना चाहिए। तो मैं कभी सबके ऊपर कहाँ देखूं, तो इसे वो सीबीआई से आया है वो, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल सेंड इट। मेरा तो लॉस होगा बिकॉज आई वांट यू हियर, लेकिन तुम्हारे अपने कैरियर के लिए सीबीआई या आईबी में जाना चाहिए। ऐसे नहीं, आईबी तो मेरे इंटरेस्ट वाली लाइन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन मेरे इंटरेस्ट की है, तो सीबीआई डेफिनेटली। तो मैं सीबीआई को अपना भेज दिया सीवी, सीबीआई से सिलेक्शन आ गया। अब सीबीआई से सिलेक्शन आ गया और वहाँ पे वो डीजी, तो उस टाइम उनका शायद ट्रांसफर हो रहा था। अब मणिपुर गवर्नमेंट मुझे रिलीज नहीं कर रही, क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी उखरूल डिस्ट्रिक्ट में, और उनको उखरूल डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई एसपी नहीं मिल रहा, क्योंकि उससे वो सबसे डिस्टर्ब था। जिसकी पोस्टिंग होती थी वो कहीं जाके हाथ पांव जोड़ के तो वो पोस्टिंग होने से पहले रुकवा देता था, या वो आया पोस्टिंग 2 दिन आया, उसके बाद कुछ भी बहाना कर निकल गया, तो कोई रहता ही नहीं था। मेरे से पहले एक एसपी था उखरूल में जिसने 1 साल पूरा किया था, और जब मैं चार्ज लेने गया तो उसने मुझे बोला भाई यहाँ पे 1 साल में 10 साल की एजिंग होती है, तो इफ योर टारगेट शुड बी टू कंप्लीट 1 ईयर। आई कंप्लीटेड 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बाद भी जब सीबीआई में पोस्टिंग हुई, फाइल पे लिखा हुआ था फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू डीजी, द ऑफिसर में बी रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर कपल ऑफ मंथ्स मोर टिल वी फाइंड हिज रिप्लेसमेंट। तो मेरे लिए तो ये इज मोर देन एनी मेडल। तो आई सेड ओके, आई डोंट माइंड स्टेइंग सम मोर टाइम प्रोवाइडेड माई पोस्टिंग इन सीबीआई डज नॉट गेट अफेक्टेड। और इधर से सीबीआई से आ रहा था भी आइदर ज्वाइन और वी विल कैंसल इट, वी विल गिव टू समवन एल्स। तो फिर फाइनली आफ्टर कन्विंसिंग देम आई सेड मेरा वो पोस्टिंग भी खत्म ना हो जाए, तो आई केम टू सीबीआई। तो सीबीआई में उसके बाद बस रेस्ट तो फिर चलता गया सीबीआई के बाद। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर सीबीआई में जब आने के बाद आपने एक केस सॉल्व किया, हवाला डायरी वाला केस, उसके बारे में आप कुछ बताएं। एक्चुअली सीबीआई में मैं सीधा नहीं उसमें एंटी करप्शन में गया। सबसे मेरी पोस्टिंग पहले वो एक ये जो आर्ट एंड एंटीक्विटी वगैरह करते हैं उसमें हुई पोस्टिंग। उसके बाद साथ में मुझे नारकोटिक्स का दिया, पूरे कंट्री को ब्रांच थी जिसमें सारे ड्रग केसेस। तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े ड्रग ट्रैफिकर पकड़े, काफी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसाइनमेंट्स पकड़ी। कभी बड़े बड़े गुंडे जो अपने आप को समझते थे भी अनटचेबल, एक को तो वो राजस्थान वाली रोड पे जयपुर के रास्ते में सड़क पे लिटा के क्वेश्चनिंग किया पीछे से जवाब दो कहाँ है सारा। तो नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग उसको मारा नहीं, वहां पे बैठ के प्यार से बताओ भी क्या क्या है। तो वो अनटचेबल टाइप था। वहाँ भी अच्छा केस किया, और भी बहुत किए केसेस। एक यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे एक स्पेनिश नेशनल था, वो इमिग्रेशन से निकल चुका था, उसका सूटकेस भी था, दैट मीन सिक्योरिटी क्लियरेंस था। तो जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली तो मैं गया अपने डीएसपी को लेके, उसको उस टाइम तो मेरी एक्सेस थी ना, आई कुड गो राइट अप टू द प्लेन, वो बैज था स्पेशल बैज। तो वहां जाके उसने आइडेंटिफिकेशन आदमी ने दिया था, उसने ये वाला कोट पहना, उसके ऊपर इस कलर का ओवरकोट पहना है, तो फॉरन भी बताया। तो जैसे ही उसको जाके पकड़ा, उसका ब्रीफ केस खोला तो ब्रीफ केस में कोई और कुछ नहीं था, कपड़े के अंदर ऐसे लाइनें लगी हुई थी, हेरोइन, हाई क्वालिटी प्योर वाइट
फिर उसका सूटकेस जो ऑलरेडी लोड हो चुका था वो निकलवाया फ्लाइट से, और 6.5 किलो हाई क्वालिटी हेरोइन रात में उसी टाइम पकड़ी। ये मेरा पहले का था। वो ड्रग्स के बाद फिर उसके बाद मेरा कोई एंटी करप्शन में पोस्टिंग हुआ 1994 में। तो एंटी करप्शन में जब था ये, वो जो करप्शन एट हायर प्लेसेस करते हैं ना, जिसमें हायर लेवल के ही ऑफिस जो बंदे हैं उन्हीं को पकड़ते थे, नॉट लाइक लोअर लेवल की करप्शन नहीं। तो उस केस में किए, काफ़ी केस किए। हवाला तो थोड़ा सा बाद में आ, कलकत्ता वो कर्नाटका में किया, बंगारप्पा जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, अब तो है नहीं। बंगारप्पा, क्लासिक कंप्यूटर था वो केस। फिर एक पीसी डेंटल कॉलेज जिसमें पैसे लेके लोगों को एडमिशन दे दिया लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। वो केस मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बाय नेम दिया था, बाय नेम जस्टिस कुलदीप सिंह ने भी, ही विल इन्वेस्टिगेट दिस केस। और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके मुझे पूछा भी अगर कोई इंटरफियरेंस आए, किसी टाइप की भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, कम एंड रिपोर्ट टू अस डायरेक्टली। तो वो सारा चल रहा था, वो दोनों केस हो गए। उसके बाद ये फिर आया भी थोड़ा हवाला वाली कोई टीम दूसरी थी, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इनको हेल्प करो। उसी बीच में ये सुखराम वाला केस भी जो है 96 में फिर वो आया। लेकिन वो जो हवाला वाले केस में वो ये था, यू स्पेसिफिकली ना हवाला केस के ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, जगह जगह पे डायरेक्टर सीबीआई को भी बुला के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपडेट मांगा। तो मैं उस टाइम था वहाँ पे, सेम एंटी करप्शन ब्रांच में था, कई केस बंगारप्पा और ये सब किए थे। तो एक दिन डायरेक्टर सीबीआई नए आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया, मिलके बोलते भी 2 हफ्ते के अंदर हमें कुछ चाहिए क्योंकि कोर्ट में देना है, कुछ बताना है प्रोग्रेस। तो 2 हफ्ते में कुछ भी करो, किसी को रिपोर्ट करने का नहीं, और छुट्टी लो, टेक लीव और डू व्हाटएवर, लेकिन ये जो है इसका कुछ 2 हफ्ते में कुछ विजिबल रिजल्ट होना चाहिए। तो फिर मैं किया, फिर जिनके नाम थे सस्पेक्टेड उन मिनिस्टरों के ड्राइवरों से, पीए से, सबसे दोस्ती की, शाम को जा के सब डिटेल निकाली। 2 हफ्ते में एक हैंड रिटन रिपोर्ट दी, जो कहीं मेरे पास कोई कॉपी नहीं, कोर्ट में होगी या और तो कहीं होगी नहीं क्योंकि हैंड रिटन रिपोर्ट थी। तो ऐसे मेरी हवाला में आई। और 1-2 केस जो उसमें स्पेसिफिकली बीच में स्पेसिफिक सॉल्व हुए, एक तो कोर्ट में भी चला, लेकिन कोर्ट ने एंड में, कोर्ट की जजमेंट है, वी ऑनर इट। उसमें जजमेंट में ये नहीं था भी वो गलत है या एविडेंस नहीं है, उसको वो कन्विक्शन इस टाइप की भी ओके ये इसने जो करप्शन में ये लिया है उसको वापस कर दे, इस टाइप की भी जजमेंट, विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल। लेकिन कम से कम एविडेंस को तो रिस्पेक्ट किया भी, हाँ एविडेंस सही है, क्योंकि वो सेम है उस केस में। अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल दूंगा तो बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा इमीडिएटली, तो उससे ज्यादा फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं बता सकता। तो हवाला में मेरा वही था, बस स्पेसिफिक टारगेटेड रोल था। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टर सीबीआई डायरेक्ट बोलते थे इसके बारे, इसके कुछ नहीं है टीम के पास, तो यू डू इन योर ओन स्टाइल। मेरा स्टाइल तो सिंपल था, इन्फिल्ट्रेट कर जाओ उसमें, और सबसे ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन देते हैं करप्ट अमीर जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उनके जो ड्राइवर और हेल्पर और वो सब, उनको सब पता होता है क्या हुआ। अब उस केस में क्या हुआ, मैं ड्राइवर से दोस्ती की, मैं एंट नहीं दूंगा किसके, आई सेड वो तुम ये अच्छा ये गाड़ी चलाते हो, मैं भी ड्राइवर बन के गया जाके यहाँ। तो वो जो पहले थी वो वाली कार का नंबर बताया, ये वो कहाँ है आजकल। तो मुझे बोलता नहीं वो आराम धीरे बोलो, वो तो हमने वहाँ छुपा के रखी है उस जगह पे, क्योंकि वो सीबीआई वाले पूछ रहे थे उस कार के बारे में। तो ऐसे ठीक है, कहाँ पे पड़ी है, वहां पे रखी हुई है गैराज, तो जाके नेक्स्ट डे सुबह हम ले आए। तो ऐसे होता है कई बार, क्या होता है अगर आप ये ऑफिस में बैठ के तो नहीं हो सकता। ये जो यंग ऑफिसर्स हैं वो
इतने साल पहले उनके लिए एडवाइस थी, KF रुस्तम जी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हुए हैं, BSF स्टार्ट उन्होंने की थी। तो उन्होंने लिखा था कि काफ़ी ऑफिसर जो हैं पुलिस ऑफिसर, दे जीप थ्रू देयर टेन्योर इन द डिस्ट्रिक्ट, वो गाड़ी से नहीं उतरते। नॉट सिर्फ सभी नहीं होते लेकिन कुछ हैं, तो वो थोड़ा निकलो जाके उसमें इन्वॉल्वमेंट करो, ये नहीं भी वो उसको सफर करो, दैट ओवर एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी तो होनी चाहिए ना। तो वो था मेरा, बस उतना ही रोल था, स्पेसिफिक टारगेटेड। बाकी हवाला केस की वो जो, लेकिन हवाला केस ने एक बहुत बढ़िया जो किया, शो किया, वो डायरी, जिससे वो डायरी बुक्स भी लिखी गई डायरी के ऊपर, कई जगह पे वो डिटेल्स आई। उस डायरी अगर वो करेक्ट डिस्क्रिप्शन लो तो उसने ये शो कर दिया भी करप्शन सेकुलर है, करप्शन किसी लेवल को नहीं मानती, क्योंकि उस डायरी में जो 116 नाम थे, जैसे उसने खुद डिस्क्रिप्शन दिया, वो हर पार्टी का था उसमें, तो कोई पार्टी एक्सेप्शन नहीं थी, हर एक के इनिशियल्स लिखे थे। वो कई जगह हम लोग, कुछ लोगों ने माना यस मेरे ही हैं, कुछ लोगों ने डिनाई किया, बट एक लेसन उससे भी, करप्शन जो है ना, वो ना तो जेंडर देखती है ना कास्ट देखती है, सेकुलर है बिल्कुल, हर पार्टी का, हर कम्युनिटी का आदमी जो है उसमें था उस डायरी में। तो मेरा बस इतना ही था रोल हवाला में उसके, क्योंकि उसके बाद तो खैर मेन फिर वो दूसरा टेलीकॉम वाला शुरू हो गया बस। तो सर आप उसी बंगारप्पा वाला केस भी बताए ना सर, उसमें क्या हुआ था सर? उसमें एक्चुअली पहला तो वो क्लासिक कंप्यूटर वाला केस था, जिसमें उस टाइम ये मैकिन्टोश कंप्यूटर खरीदे थे उन्होंने, तो नॉर्मली फाइल नीचे से चलती वो ऊपर से चली थी, और वो लास्ट में, तो उसमें हमने सबको, बंगारप्पा चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको भी क्वेश्चनिंग किया, काफ़ी बार किया, चार्जशीट भी किया, और एक वो PC डेंटल कॉलेज वाले में भी सेम वो भी थे, और थे 2-3 लोग हायर लेवल के उनके, तो वो सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया, और तो क्या स्पेसिफिक तो नहीं। बट सर अगर जैसे कोई ओहदे में अच्छे पर्सन हो, जैसे आपने CM यहाँ पे बोला, तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं गई कि केस फाइल करना है, कोई एक्शन लेना है? उसमें क्या होता, जो इन्वेस्टिगेट करता है ना, पुलिस ऑफिसर हो, वो कस्टम्स का हो, फॉरेस्ट का हो, रेवेन्यू, किसी भी डिपार्टमेंट का जिसको इन्वेस्टिगेशन की पावर है, वो किसी भी रैंक का हो और उसके सामने किसी भी रैंक का आदमी फेस कर रहा हो, उसको अपने आप को इन्वेस्टिगेटर समझना चाहिए, और सामने वाले को जिस सस्पेक्ट, उससे ज़्यादा उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ वो तो चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर होम मिनिस्टर तो बहुत किए, तो रिस्पेक्टफुली बात करो, लेकिन वो हम लोग बोलते हैं बी फर्म एंड पोलाइट, पोलाइटनेस पूरी रखो, लेकिन फर्म, ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है, नहीं देंगे तो आपके अगेंस्ट इट विल बी हेल्ड, दैट यू हैव नो डिफेंस। तो ये चीज़ आप उसमें कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा करें तो फिर इसमें 2-3 हैं केस हुए जहाँ वो बड़े लेवल वाला आदमी, उसको लगा ये मुझे हाउ डेयर ही आस्क, दैट टाइप ऑफ टोन, तो वो फिर थोड़ा सा उनको लेवल पे लेके आना पड़ता है। ये सर काफी मूवीज में ऐसा होता है कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे सवाल पूछने की? नहीं, करते हैं कई बार उसमें, जैसे अभी एक यहाँ मैं सीनियर ऑफिसर को बुलाया यहाँ, जब दिल्ली में लोकनायक भवन में, तो वो मेरे से 20 साल सीनियर था एग्जैक्ट। तो उसने आते ही अब सब उसको समन किया, उसके बाद होगा, डिसाइड होगा अगर एविडेंस है अरेस्ट करना नहीं करना। उसने आते ही सोचा इसको मैं थोड़ा इम्प्रेस कर दूं, मतलब बैच की स्ट्रेंथ से, क्योंकि उसका तो पता, जब हमने इनवाइट किया तो हमें पता है ना भी वो आदमी की क्या सीनियरिटी है, जब बुलाया ये थोड़ा भी नहीं पता। तो उसने आते ही एंटर कर दे, इतना तो होमवर्क करके आओ भी मैं बुला रहा हूँ, अपने नाम से समन साइन करके भेज रहा हूँ, तो मेरे बारे थोड़ी वेरिफिकेशन करो भी ये कौन है, IPS का है नहीं IPS का है, किस बैच का है, आसपास कितना सीनियर है, SP। उसने आते ही एंटर करते
Yes, Sandhu, which batch of IPS you are? अब इसका मतलब बैच इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो मैं उसको बोला, उसका बैच भी बता दिया। आई सेड सर, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस वेदर आई एम 63 बैच और 83 बैच? उसका बैच भी बता दिया, अपना भी बता दिया। डज इट मेक एनी डिफरेंस? आई एम SPCBI, आई हैव कॉल्ड यू हियर एज ए सस्पेक्ट इन दिस केस। That is the only introduction that you need to get from me. And till then I was planning that I will respectfully, I will myself question him, out of respect, senior है। तो उसके बाद मैं बिठाया, चाय पिलाई, तो अपने बुलाया DSP को, ऐसे साहब को ले जाओ और दूसरे कमरे में वहाँ पे जाके इनसे को स्टेटमेंट जो है ले लो। तो थोड़ा प्रॉपर लेवल पे कई बार लेके आना पड़ता है। तो ऐसे सेम वो कई बार वो चीफ मिनिस्टर भी वही ऐसा ही शुरू में करते हैं। मैं उससे बात करूंगा, देयर आर सो मेनी, आई कैन नॉट टेल देम, क्योंकि वो फिर एकदम नाम आइडेंटिफाई हो जाए। ये तो चलो केस था, एक और भी था यहाँ पे, काफी हाई लेवल का एक ऑलमोस्ट टॉप, वो भी शुरू में कुछ ऐसा ही मिसबिहेव किया। तो ऐसे मैं तो आया था आपके घर आउट ऑफ रिस्पेक्ट पूछने, अब आप मेरे ऑफिस आएंगे। ओके तो वो इनका क्या होता है, कई बार थोड़ा सा दे ट्राई टू प्रेशराइज। एक और सस्पेक्ट था यहाँ, वो मुझे बोलता वो लास्ट नाइट आई वाज हैविंग डिनर विद सो एंड सो, किसी का नाम ले देंगे टॉप पे ऊपर, तो उससे क्या फर्क पड़ता, अब कल किसके साथ डिनर, अब चाहे जॉर्ज बुश के साथ कल डिनर ले रहे थे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है तो आप उसका जवाब दीजिए ना। वो अगर वो क्वेश्चन होगा एक भी आपने कल खाना कहाँ खाया, तब आप बताइए ना जवाब। तो ये चीज जो है ना अंदर, जो कोई भी ऑफिसर किसी भी सर्विस का हो, अगर वो अपना काम प्रॉपरली, ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से करता है, तो उसको कोई डरने का जरूरत नहीं। दैट्स, मैं तो अपने सालों में यही सीखा, नॉट ओनली हियर, इंटरनेशनली भी बड़े बड़े केसेस हैं उसमें सामने। ये अभी बाहर लोग ऐसी हमाकत नहीं करते। वो उनको बुलाओ तो वो आके, ठीक है, वो अपना पूरा लीगल एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे, जाना नहीं जाना, कब जाना, और लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे आके हाउ डियर यू। ये जो हाउ डियर यू वाला है ना, ये हमारे है यहाँ, और वही चीज कई बार मूवीज में भी दिखा देते हैं। और कई बार फिर ऐसे में ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा ही करे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है बहुत देर इसने कुर्सी पे बैठ लिया, अब थोड़ा सा जरा नीचे स्टूल पे भी बैठ जाओ। अगर आप इतना ही, हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं, आप उल्टा चढ़े जा रहे हो, तो फिर उस केस में आई एम नॉट सेइंग भी उनको 3rd डिग्री और समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग भी फिर उसको उसकी जगह पे लेके आना पड़ता है ना। यहाँ पे यू आर एज ए अक्यूज्ड, यू आर एज ए सस्पेक्ट, इससे ज्यादा हैसियत नहीं है अगर आपको बुलाया गया। आप स्टेट में हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप कुछ भी हो, वो आपकी अपनी पोजीशन है, लेकिन इस टाइम मेरे कमरे में यहाँ पे आप इस पोजीशन से आए हो, सो जस्ट बिहेव लाइक दैट। और मेरे केस आई कैन प्राउडली से हमेशा इट वर्क। ग्रेट सर। एंड सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाला केस कैसा था सर? वो भी काफी अच्छा रहा। वो तो केस मेरा राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक, पूरा केस, क्योंकि उसमें हमारे एक रहते, पहले था आर्टिकल 125 बोलते हैं एविडेंस एक्ट में, नोबडी कैन आस्क यू द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैं SP हूँ और आपने इंफॉर्मेशन मुझे दी, तो मैं वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करूंगा, लिखूंगा, ये लिखूंगा ये किसी सोर्स ने मुझे इंफॉर्मेशन दी। लेकिन वो कोर्ट जो है ये फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी कोर्ट भी आप सोर्स का नाम बताओ, वो अभिषेक था या नहीं था, नहीं वो नहीं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन थी एविडेंस एक्ट में। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ था। एक किसी आदमी ने उनके डिपार्टमेंट से एक सिंगल फाइल का एक पेज, जस्ट एक पेज फोटोकॉपी करके दिया था, भी ये है, अब बाकी खुद ही देख लो। अब जब उसके बाद तो फिर हमने फाइल, फिर तो खैर जब एक बार शुरू कर दिया तो
फिर तो देखा ये है, उसमें सस्पेक्ट अगर मिनिस्टर हैं, दो एक वो और ऑफिसर थे, तो एक को जिसको फेवर दिया था, तीनों के घर साइमल्टेनियस रेड किए। साइमल्टेनियस रेड किया तो काफी पैसा मिल गया, अच्छा खासा पैसा मिला। उस टाइम तो आजकल तो लोग करते हैं 100,000 ऑफ करोड़, उस टाइम उतना ही बहुत था। एंड सर जो अभी ये रिसेंट स्कैम हुआ है, हाँ। ये एक बंदे के यहाँ, जैसे सभी को पता है कि 353 करोड़ कैश मिला है और बेनामी प्रॉपर्टीज, लैंड वो कितना हो तो अभी तक काउंट आई डोंट नो, एंड गोल्ड वगैरह भी इतना काउंट हो रहा है एक मेंबर की तरफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कांग्रेस की तरफ से। तो सर व्हाट्स योर थॉट कि इतना पैसा कैसे जमा कर लेते हैं? सी उनका वो तो जब जितना फेवर देंगे ना, इन रिटर्न फॉर समथिंग, इसका मतलब जिसने भी वो पैसा एक ने या ज्यादा ने दिया है, उनको रिटर्न में कुछ तो मिला होगा ना। ये केस के बारे में मेरी नॉलेज से इतनी है जो मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो अपने पहले ऐसे केस किए हैं उसमें वही है। कई बार जो पैसा देते हैं ना लोग, उनको पता है कि अगर मैं 5 लाख दे रहा हूँ, उस टाइम के 5 लाख आज लोग 5 करोड़ की बात करते हैं, वही इतना फर्क हो गया 94-5 अर्ली 90s में। क्योंकि जब उस टाइम हमने वो 4.73 करोड़ पकड़ा था मिनिस्टर के घर से, तो पूरे कंट्री वाइड तहलका मच गया था, जिसको बोलते हैं कंट्री में, लाइक नेशनल न्यूज हो चुकी थी। नेशनल क्या, यहाँ से जितने इंडियन बाहर हैं वो तक लिखते थे वहाँ इंडो कैनेडियन न्यूज़पेपर में, यूके के वर्नैकुलर पेपर्स में, वो सब उस टाइम के कार्टून तक बने हुए थे। वो एक में लिखा था, मेरा नाम लिख के, एच.एस. संधू सुखराम तो सुख शांत पूछते हुए, ही वाज सिटिंग देयर, मैं ऐसे जमीन पे नहीं बैठा था, पर उसको कार्टून में बनाया हुआ था। तो इस टाइप से वो इतना इंटरनेशनल न्यूज उस टाइम हो गया, नेशनल से भी ज्यादा। तो इतने पैसे का था, लेकिन वो जो जिस आदमी ने भी वो पैसा दिया, जैसे एक ब्रीफ केस की बात कर, बीच में था 5 लाख। अब जिसने 5 लाख दिया है, तो वो 5 लाख ये कोई धर्म खाते तो नहीं है ना, उसको रिटर्न में कुछ मिला होगा। अब जो 5 लाख दे के जा रहा, वो 5 लाख के बदले उसने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न में उसने क्या दिया, वो फिर आगे मटेरियल पुअर क्वालिटी का होगा। तभी कई बार होता है ना, ब्रिज अभी बना नहीं होता और गिर जाता है। लिफ्ट खड़ी कर रहे हैं, लिफ्ट नीचे गिर गई, इसी वो कुछ। तो इसीलिए वो जो पहले पैसा दे चुके हैं और अब उसके रिटर्न में वो इतना उन्होंने अपना भी कमाना है और भी कई लोगों को देना है, तो मटेरियल कहाँ लगेगा। और कई बार वो जो, इसी से मुझे याद आया वो जो मैं बोल रहा, क्रिमिनल्स आर ग्रीडी, डेस्परेट एंड स्टूपिड। अब उसी केस में एक स्टूपिडिटी, हम लोग जब पैसा काउंट कर रहे थे, बीच में एक ब्रीफ केस था, वो जो पतले ब्रीफ केस हार्ड वाले होते ना उस टाइम के, पतला ब्रीफ केस, मूवीज में काफी देखा। हाँ, वो जो मूवी टाइप वाला मतलब लिटरली था, वो एक कैबिनेट में खोल रहे हैं तो बाकी ऐसे कुछ यहाँ कैश है, कुछ वहाँ, तो वो खोला, उसका लॉक जो था कोई बंद नहीं था, जैसे उसका फ्लैप ऐसे खोला तो पैसे की गड्डियां, और उसके ऊपर एक विजिटिंग कार्ड है, जैसे विजिटिंग कार्ड पड़ा हो। अब वैसे तो पता नहीं चलता किसका है, लेकिन वो और वो उसकी स्टोरी बाद में ये पता चली, जब वो पैसा देने आया था तो मंत्री जी घर पे नहीं थे, तो उसने सोचा मैं ऊपर ये स्लिप रख देता हूँ, और वो जिसको पकड़ाया उनके पीए को, उसने वो स्लिप खोल के स्लिप ऊपर रख दी, और वो ऐसे ही वहां पड़ा रहा। तो हमने फिर उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको भी जा दबोचा वहाँ जिस स्टेट में थे, he was a big shot in some other state। तो यहाँ से चले गाड़ी में, जाके उठा लिया, उनका पेट खराब हो गया। जब बोला आप हमारे साथ, अब मेहमान हैं, दिल्ली चलेंगे, तो वो कभी बाथरूम में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नहीं वो आप दवाई मेडिसिन ले लीजिए, हमारे साथ ही चलना, आपको चलना है, क्योंकि वो अब एविडेंस छोड़ गए ना, अदरवाइज हमें कभी पता ही नहीं चलता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते भी वो जो इतना पैसा है कहाँ से आया, क्योंकि और कोई स्लिप नहीं। वो तो सिर्फ ये कर सकते भी ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट से लिया, उससे लिया, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसका पैसा है, उसने कितना दिया और लोगों ने कितना दिया, लेकिन ये महाशय तो अपना स्लिप ही छोड़ गए
with best compliments from ओके। तो ऐसे कई बार वो एक एक केस की बात कर तो वो बीच में ही याद आ जाता है, भाई ये मुझे बहुत स्ट्राइक करता तब से भी, अगर उसने वो स्लिप नहीं छोड़ी होती तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। That's so funny, man. Great, sir. Sorry. And sir, इतने आपने केसेस सॉल्व किए तो कभी तो ऐसा होता होगा कि थ्रेट आता होगा, ये जैसे फैमिली पे भी आता है सर, तो कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली पे कोई छोटा सा बड़ा सा कोई थ्रेट या फोन कॉल थ्रेट? वो तो बेसिक इन केसेस में तो हर जगह बड़े लोगों का उनके अपने नेटवर्क है, उनका अपना स्टाइल है। मुझे याद है, मुझे एक ऐसे ही मंत्री ऐसे ही बोला था एक बार, उनको लेके जा रहा था कोर्ट में, तो हम लोग एक ही गाड़ी में बैठे थे, तो उसने वो ये क्या करते हैं, कई बार डायरेक्ट थ्रेट देते हैं, कई बार वो डबल मीनिंग थ्रेट देते हैं। तो उसने मुझे गाड़ी में बैठे बैठे बोला, भाई मेरे बच्चों तक ना जाइए क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। तो मैं एकदम से घूम के पकड़ा, मैं कि क्या, व्हाट डू यू मीन? अगर मेरे बच्चों के बारे में सोचा अभी तो सर उसके बाद क्या होगा, दैट आई कांट से ऑन रिकॉर्ड। तो उसके बाद ये वो फिर इतने स्मार्ट होते, क्लेवरली ही टर्न, नहीं मैं तो एक्चुअली ये आई वांटेड टू से भी मेरे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह, मैं कहा आपके बच्चे तो मेरी उम्र के हैं, वो मेरे बच्चों जैसे नहीं है, लेकिन डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, ओके। तो करते हैं कई बार वो वो आउटविटिंग ईच अदर होता है, काफी बार वो थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं। अब जब नहीं डरे तो फिर चलता है, फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन कोशिश ना की हो ऐसा नहीं हो सकता। थ्रेटन एक तो ये, दूसरा आपके किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली वाले को अप्रोच कर लेंगे जाके, इतना तो सबको पता होता, जो कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके पास चले जाएंगे, उससे बात कराएंगे आपसे। मैं सीबीआई के टाइम में जब केसेस, जिन दिनों में कोई केस होता था, मैं पीए को इंस्ट्रक्शन थी किसी का भी फोन आए, फोन लाइन अंदर नहीं देनी। तो मैं एक बार ऐसे ही किसी को क्वेश्चनिंग कर रहा था अंदर, तो पीए को बोला हुआ था भी कोई भी फोन आए नहीं देना, तो उसने काफी देर वेट किया, तो फिर उसके बाद वो हिम्मत करके अंदर आ गई, भी वो स्वामी जी बात करने जाते हो। मैं कहा मैं किसी स्वामी जी को नहीं जानता, मैं नास्तिक बंदा, मुझे कोई स्वामी जी से बात नहीं करनी है। अब जो भी स्वामी जी से थे तो मना कर दिया उसको, बोला नहीं, बोलती बहुत इंसिस्ट कर रहे। मैं कहा उनको कुछ भी बोल दो, वो उन्होंने मना किया, बोल दो तुम्हारा तो कवर्ड है, जिससे उन्होंने एक बार तो बोल चुकी है भी आई एम सिटिंग, या तो बोलते ना भी बाहर गए हैं कुछ है, वो अलग है। तो फिर दोबारा अब स्वामी जी को बात तो करनी है, वो तो डेस्परेट हैं, जो भी स्वामी जी थे, इतने इंडिया में इतने स्वामी जी हैं। तो वो एक मेरे फ्रेंड के घर चले गए, जो उस टाइम था, पावरफुल था दिल्ली, उसके घर चले गए। तो अब उनको मेरा पर्सनल मोबाइल पता था, उनका फोन आया, तो मैं समझ गया भाई अब तो कुछ है। तो मैं फोन सुनते सुनते बाहर आया, तो then he said same thing, स्वामी जी बैठे हैं मेरे को, you know। So these, no, I'm just trying to respond to your question। ये नहीं ये लोग ट्राई नहीं करते, ट्राई करते हैं। अब जब उनको पता चल गया भी मैं नहीं लाइन पे ले रहा, तो इतनी क्विकली उनके चेले जो थे, वो चेले जो थे उन्होंने बता दिया भी वो उनके वो फ्रेंड हैं, उनके घर जाते हैं कई बार। तो वो मेरे फ्रेंड के घर चले गए और वहां से फोन करा रहे। तो फाइनली आई टोल्ड हिम, आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, मैं बात नहीं करूंगा। तो फाइनली सर अच्छा बात भी ना करो, ये तो बता दो जो अपने सामने बिठाया हुआ है जिसको, उसको अरेस्ट कर रहे हो या छोड़ रहे हो। ऐसे नहीं, यही तो सारी प्रॉब्लम है, ये तो बता ही नहीं सकता मैं। क्योंकि ये कैसे बताएंगे, ये तो पता चलेगा जब उसकी रात, आधी रात तक पूरी क्वेश्चनिंग होगी,
उसको फिर बुलाएंगे कल, तो वो डिपेंड करता है उसको रात को रखना है या घर भेज के फिर नेक्स्ट डे बुलाना है, तो मैं इस टाइम नहीं बोल सकता। तो ऐसे ट्राई करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं। एंड सर ये सीबीआई और आईबी में फर्क क्या है? सी सीबीआई तो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जैसे नाम है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई भी केस है, इनके डिफरेंट केसेस हैं, करप्शन के हैं, स्पेशल क्राइम्स हैं जिसमें मर्डर, बहुत सेंसिटिव मर्डर है, रेप है, तो जो भी क्राइम जो स्पेशल कैटेगरी है या करप्शन का है वो सीबीआई करती है। और सीबीआई में ही वो इंटरपोल की ब्रांच है जो कनेक्ट करती है बाहर का भी कोई इंटरनेशनल एंगल हो वो भी। और आईबी बेसिकली इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। ओके, कंट्री के विद इन, जो कंट्री के अंदर की इंटेलिजेंस है वो आईबी करती है। इसलिए आपने सीबीआई चूज की? मेरा इंटरेस्ट था, मतलब मैं, क्योंकि काफी लोग कई बार कंपेयर करते हैं, अच्छे सीबीआई कैरियर बेटर है या आईबी कैरियर बेटर है। दोनों अच्छे हैं, ये चॉइस है। आई नो कई लोग परमानेंटली वो एक बार आईबी ज्वाइन कर ली, पूरी लाइफ आईबी में रहे, बहुत खुश रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीबीआई में ठीक रहा हूँ। वो मेरा इंटरेस्ट था, मेरा एप्टीट्यूड था, लाइकिंग थी, बस ये फर्क है दोनों में।